اور بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کوئٹہ آفس میں الیکشن کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کوئٹہ آفس میں الیکشن کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا یہ آخری مرحلہ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ کا عمل ابھی جاری ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کوئٹہ آفس میں الیکشن کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے یہ پولنگ کا عمل جاری ہے اور صوبائی الیکشن کمیشن کوئٹہ آفس میں الیکشن کی نگرانی کے لیے بھی کوئٹہ میں روم قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن کا یہ آخری مرحلہ ہے جس کے لیے ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ مرحلہ جو ٹائمنگ جو صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت بلوچستان کے ضلع پشین میں موجود اب 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی تک جو ممبران ہیں، جن ممبروں نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کرنا وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن کا تمام عملہ یہاں پہنچا، پریزائڈنگ آفیسر یہاں پہنچا ہے، RO یہاں پہنچا ہوا ہے، سب پہنچے ہوئے، تمام انتظامات مکمل، لیکن جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں اب تک وہ لوگ نہیں آئے ہیں۔ یہاں اگر ہم پشین کی بات کریں تو ٹوٹل جو ممبرز ہیں جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب وہ 92 ہیں، جن میں جو 67 جو ہے UCs کے چیئرمین اور 25 جو ہیں مخصوص نشستوں پہ کامیاب ہونے والے امیدوار ہیں، جن میں خواتین ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں اور اقلیت کے نمائندے شامل ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ان سے جب ہماری بات ہوئی، جیسے ہی ان کا کہنا ہے کہ جیسے تمام ممبرز یہاں پہنچ جائیں گے، سب سے پہلے عمل یہ ہوگا کہ ان تمام ممبرز کا جو حلف برداری کی تقریب ہوگا، جیسے حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی، اس کے بعد جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے امیدوار حصہ لینا چاہیں گے ان کے نامینیشن پیپر جمع گئے، ان کی سیکورٹی ہوگی، سیکورٹی کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کا جو ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا اور یہ عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ جی یہ عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ فرید اللہ خان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خضدار میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ ہے۔ 3 جماعتی اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے مقابلہ ابھی جاری ہے۔ مزید جانیں گے خضدار سے دنیا نیوز کے نمائندے یاسر ملک سے۔ جی یاسر۔ جدوں یونین کونسل ہال جہاں پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے پولنگ کا عمل جاری ہے، اس حوالے جو کہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا، اس حوالے سے جو کہ ممبرز آ رہے ہیں اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، پولیس اہلکار اور لیویز اہلکار اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جو کہ چیئرمین کے امیدوار ہے صلاح الدین زہری، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور جالوان عوامی پینل کے جو کہ اتحادی ہیں، کے ساتھ جو کہ وائس چیئرمین کے امیدوار ہے محمد اقبال مینگل، جو کہ PP اور BAP اور جالوان عوامی پینل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو کہ جو اپوزٹ پارٹیز ہے، سردار نصیر احمد موسیانی جو کہ چیئرمین کے امیدوار ہے، جو کہ JGY فیو نیشنل پارٹی BNP مینگل کے اتحادی ہے۔ وائس چیئرمین کے امیدوار ہے سردار یوسف علی کلندرانی، جو کہ JGY فیو سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اتحادی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی ان کے جو اتحادی ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، اس کا فیصلہ شام 5 بجے کے بعد ہوگا۔ جی اور صوبت پور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا، تاہم موسم کی خرابی کے باعث ووٹنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے صوبت پور سے دنیا نیوز کے نمائندے جمل بلوچ سے۔ جی جمل۔ جی بالکل، بلوچستان کے 35 اضلاع کی طرح ضلع صوبت پور میں بھی لوکل باڈیز کے آخری مرحلے کے الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جو شروع ہو چکا ہے۔ پولنگ جو کہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اس وقت ضلع انتظامیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پولنگ کا جو انتظامات ہیں وہ سب کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں۔ تاہم ضلع بھر میں جو برسات بارش ہونے کی وجہ سے پولنگ کے جو ووٹرز ہیں وہ ابھی تک تھوڑی دیر بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضلع صوبت پور میں کل 32 ممبران اپنا حق رائے دہی آج استعمال کریں گے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 28 اور اس کے مد مقابل نیشنل پارٹی کے 4 ممبران اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا یہ ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا صحرا کس کے سر سجتا ہے اور وہ ضلع کے عوام کی کتنی حد تک خدمت کر سکتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، کچھ موسم کی تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بادل برسانے والے 2 سسٹمز کے اشتراک کے باعث شدید بارشیں، موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ PDMA نے 8 سے 10 جولائی کے درمیان دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل قیصر اپنے رپورٹ میں۔
मगरब से आने वाली हवाओं के साथ बहिरा अरब से उठने वाली हवाओं के इश्तराक के बाइस मुल्क के बेशतर इलाके शदीद बारिशों की लपेट में हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कभी कभार पैदा होने वाली ऐसी सूरत हाल के बाइस मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ 8 से 10 जुलाई के दौरान दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त दरिया सतलुज और दरिया रावी के कैचमेंट एरियाज में भी शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस इनसे मुल्हिका सैलाबी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। इन हालात में शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद शहर और उसके गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि तेज हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह के अगर मौसम का जायज़ा लिया जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, आसमान पर गहरे बादल भी छाए हुए हैं, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट चुका है। दरख्तों की, पौधों की, घास की बात की जाए तो वो भी बारिश के पानी में नहाने के बाद खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और साथ ही अगर महकमा वासा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो मौसम तो खुशगवार हो गया है, शहरी तो रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन साथ ही जो गलियां, महल्ले और जो नशेबी इलाके हैं वो बारिश के पानी में डूबने से शहरियों को मसाइल का सामना है। वासा की जानिब से दावे किए गए थे कि बारिश की पानी की निकासी के लिए बेहतर इकदाम किए गए हैं, लेकिन ये तमाम तर दावे ही दिखाई दे रहे हैं और शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज़ तक बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी, गर्मी का जोर कम होगा और शहरियों को सुहाना मौसम मैसर आएगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, जबकि दरियाए नीलम और जहलम में पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मानसून बारिशों का जो सिलसिला है ये जारी है और बारिशों की वजह से दरियाए नीलम और दरियाए झेलम में जो पानी की सतह है ये भी बुलंद होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नदी नाले भी जो है अब बिफरना जो है शुरू हो चुके हैं और वादी नीलम, वादी लीपा, हवेली और बाकी जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश की वजह से जो गर्मी का जोर है वो भी टूट चुका है। जो हवाएँ चल रही हैं इसकी वजह से दारुल हुकूमत और गिरदनवा का जो मौसम है ये भी काफ़ी जो है खुशगवार हो चुका है। जो बालाई इलाकों की जो शराह हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है, जिसकी वजह से मकामी इंतजामिया की जानब से सियाहों को, शहरियों को ये हदायत की गई है कि बारिशों के दौरान आज़ाद कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ का जो सफ़र है उससे इतनाब बरता जाए। दरिया नीलम और झेलम की सतह भी जो है बुलंद होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो भी दरियाओं के करीब जाने से जो है इतनाब बरतें, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होने जा रहा है, जिसका 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक पेश की जाएगी, जबकि स्वीडन वाक़े पर मजम्मती करारदाद भी आज मंजूर होगी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिए। जी देखें, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे मुनाकिद होगा पार्लियामेंट हाउस में और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से इस हवाले से एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडा जो है वो 2 निकाती है, लेकिन इसमें एजेंडे पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्जा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे, जिस पर अरकान बहस में हिस्सा लेंगे और तहरीक पर बहस के खात्मे पर मजम्मती जो करारदाद है वो मंजूर की जाएगी। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ कबल जो इजलास हुआ था उसमें ये फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें स्वीडन के वाक़े पर करारदाद जो है वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो है मंजूर करवाई जाएगी, जिसमें इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाएगी। जी शुक्रिया जावेद आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की अपेक्स कमेटी के इजलास में खलीजी ममालिक की जानिब से मुमकिन सरमायाकारी के हवाले से 5 शोबों में फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी के लिए सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक उमूर का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। कमेटी को ज़राअत, मादनियात और IT सेक्टर्स के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। सरमायाकारी काउंसिल का पाकिस्तान में सब ज़रई इनकलाब बर्पा करने के अज़म का इजहार। ज़राए के मुताबिक इजलास में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सरगर्मियाँ तेज करने पर इत्तफाक किया गया। रवा माह मुख्तलिफ इवेंट्स के इनकाद के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इजलास में रवा माह सरमायाकारी के फरोग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सेमिनार्स के इनकाद का फैसला किया गया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी रवा माह किया जाएगा। पाकिस्तान के मादनी शोबे को फरोग देने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि चागी माइनिंग साइट का दौरा और मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतल्लिक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया और काउंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक मौक़े तलाश करने की हिदायत की। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी के फरोग के लिए काउंसिल तश्कील दी। अब बैरूनी सरमायाकारों को एक ही छत में तमाम सहूलियात दी जाएंगी। एहसन इकबाल ने बताया कि वज़ीर आज़म 7 जुलाई को ज़रई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत की तरजीह है कि एनर्जी को फॉसिल फ्यूल पर लेकर जाएं। तवानाई के शोबे में सोलर एनर्जी में मराद दी जाएंगी। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। CPEC ने वो बुनियाद मुहैया की जिसके ऊपर कामयाब मईशत की इमारत खड़ी कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए कायदे ईवान का इलेक्शन शेड्यूल था। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया गया है। PTI के रुकन असम्बली हाजी गुलबर खान ने इजलास मुलतवी करने के लिए सुप्रीम एपलेट कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई थी। हाजी गुलबर खान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। 4 अरकान की हिमायत का दावा भी कर दिया। नए वज़ीर आला के लिए PTI ने राजा आजम खान, पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को उम्मीदवार नामजद कर दिया। इधर वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान और अली खटक की जगह अफजल महमूद भट्ट को नया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात कर दिया है। अफजल महमूद भट्ट पंजाब में खिदमात अंजाम दे रहे थे। वेलकम बैक। पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज करवाने का मुआहदा। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और महकमा जेल खाना जात के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मौजूदगी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेवटा और IG जेल खाना जात ने दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को 16 टेवटा कोर्सेज करवाए जाएंगे। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताएगा। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और महकमा जेल खाना जात के दरमियान 10 मजीद जेलों में कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज कराने का मुआहदा हुआ है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेवटा अहमद खाबर शहजाद और IG जेल खाना जात फारूक नजीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को 16 जो है वो टेवटा के कोर्सेज कराए जाएंगे और 3 से 6 माह के ये कोर्सेज के इख्तिताम पर कैदियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके बायस सजा में राहत भी मिल सकेगी। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, पाकपतन, उकाड़ा, जंग, सरगोदा, बहारी, टोबा, टेक्सिंग और लिया की जेलों में ये कोर्सेज शुरू होंगे और कैदी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत दीगर कोर्सेज कर सकेंगे। हर टेप्टा कोर्स में 25 कैदी हिस्सा ले सकेंगे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने ये बताया कि टेप्टा जो है 20,000 कैदियों को जो है ट्रेनिंग दे चुका है और मजीद 10,000 कैदी जो है उनकी ट्रेनिंग के लिए ये मुआहदा किया गया। खवातीन और नौमर कैदी भी इस कोर्सेज से इस्तेफादा कर सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक़ इजलास में कैदियों के लिए जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की तजवीज़ पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मुखय्यर हज़रात के ताउन से जेलों में। जी ठीक है, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,705 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा लोड शेडिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा?
देखिए, लोड शेडिंग का सिलसिला तब तक ही जारी रहेगा जब तक सिस्टम के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे, और सिस्टम के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक डिस्को से बिजली चोरी ख़त्म नहीं होगी। और इसके अलावा कल एक और इंकशाफ भी हुआ है कि डिस्को से तो बिजली चोरी होती है, लेकिन जो हाई वोल्टेज लाइन्स है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसके आलात चोरी किए जा रहे हैं। और नेपरा हुकाम ने बताया कि उसमें जो महकमे बिजली के अफसरान हैं वो मुलविस है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको आज के मुतालिक बताऊँ तो आज का जो शॉर्टफॉल है ज़राए पावर डिवीज़न ने बताया वो 6000 से ज़ायद है। अगर मजमूई पैदावार की बात की जाए तो 20,795 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि जो तलब है वो 27,500 मेगावाट है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, ज़राए पावर डिवीज़न ने ये बताया। लेकिन जहाँ पर हाई लॉसेज है या ज़्यादा जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिजली की बंदिश जारी है। इसके साथ साथ जो सिस्टम के मसाइल है तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कई दिनों से बिजली गायब है, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है बारिशों की वजह से या जो मौसम की सूरत हाल है इसकी वजह से भी बिजली के मसाइल है और बिजली जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके साथ साथ अगर बिजली की कीमतों की बात की जाए तो वो आए रोज़ उसमें इजाफा हो जाता है। ज़राए पावर डिवीज़न ने आज की जो पैदावार है उसके मुतालिक बताया मुख्तलिफ ज़राए से जो बिजली पैदा की जा रही है। अगर बात की जाए हाइडल की तो पन बिजली से 7,349 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 639 मेगावाट, जबकि निजी शोबे के जो बिजलीगर है उनकी जो पैदावार है वो 9,000 से मेगावाट से ज़ायद है। विंड पावर प्लांट से 534, जबकि सोलर बिजलीघरों से 123 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। जोहरी तवानाई से 2,998 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन जो मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। ज़ीशान यूसुफज़ई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शदीद गर्मी के मौसम में शहर कायद में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश ने कराची वालों का जीना मुहाल कर दिया है। देखते हैं रताब आरूस की रिपोर्ट। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार और इस पर बिजली की तवील बंदिश। शहर कायद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अक्सर इलाकों में सुबह से शाम तक बिजली मयसर नहीं, जबकि 3-3 घंटे की लोड शेडिंग इसके अलावा है। गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, किमाड़ी, लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, खारादर और मलीर समेत मुताद्दिद इलाकों में बिजली की तवील बंदिश जारी। अवाम का कहना है कि वक्त पर बिलों की अदायगी के बावजूद वक्त बे वक्त बिजली की 10 से 12 घंटे की तवील बंदिश जारी है और शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। एक बिल पहले जो बिजली का बिल आता था हमारा उससे डबल तेबल आ रहा है, मगर लाइट नहीं आ रही। 12-12 घंटे लाइट नहीं होती। 1-1.5 महीने से तो मुसलसल ये 3.5 घंटे आ रही है, सिर्फ लाइट है ही नहीं। इससे पहले तो समझ ले 2 घंटे जा रही थी, 1 घंटा आ रही थी इस तरह, लेकिन अभी तो। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा और उन्होंने तमाम मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन की भी मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए और मुख्तलिफ कबायली अमायदीन के साथ मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोड़गढ़ पहुँच गए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुके हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है। उसके बाद सर ये इस बैग से हम इसको जोड़ रहे हैं थाकोट से जुद्बा, जहाँ आप खड़े हैं जी, यहाँ से इस ब्रिज के ज़रिए हम चले जाएंगे। 25 किलोमीटर की एक रोड जो है ये क्रॉस करेगी जी। ये 4 ज़िलों में से गुजर के ये सी पैक आपका लोकल जाएगा जी। इसकी वजह से इसको मुकम्मल करने के बाद सर अभी ये 4 अरब से ये बढ़ेगा जी। उसके बाद सर ये आपका मंसूबा है जो जब आप वज़ीर आज़म बने तो आपकी खिदमत में हमने कहा था कि कड़कड़ की चढ़ाई है बुनेर में पीर बाबा साहब के, तो वो जब ये टनल बन जाएगी सर तो थाकोट से हम लोग 150 किलोमीटर का फासला 250 का कम करके 1 किलोमीटर पे आ जाएंगे ये ब्रिज की वजह से। और सर थाकोट से ये सी पैक होता हुआ मर्दान और पेशावर चला जाएगा जी। ये अफ़गानिस्तान के लिए आपका एक नया इनिशिएटिव है जी और ये 4 अजला को मिला रहा है जी। सामने जो है बुनेर है, ये तोरगार है, पीछे बडग्राम है, आगे मानसरा है और फिर आगे हम चले जाएंगे मर्दान की तरफ से।
छांगला बुले अब आप खुश हैं ना? ढेरा मेरा पानी वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तौरगर अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा और उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर का दौरा और शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर पहुँच गए और उन्होंने कबायली अमायदीन से मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ मनसूबों पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आपने अपने पिछले दौर में यहाँ पर तरक्याती कामों की एक तारीख़ रकम की है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मंसूबे जिनका आज संग बुनियाद रखा गया है। उस ज़माने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं मंसूबों का उन्होंने सोचा था, ये उनका विज़न है, मगर उस वक़्त जो हालात थे उसके पेश नज़र उसके ऊपर चूँकि अगली हुकूमत जो आई जिसने पाकिस्तान की तबाही की, उन्होंने इन मंसूबों को न सिर्फ सर्द खाने में डाल दिया बल्कि एक करप्शन का और बदतरीन गफलत का वो एक दौर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी नवाज़ शरीफ के तरक्की के दौर को दोबारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है अलग फजल करम से। और मैं आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये संग बुनियाद जिन मंसूबों को रखा गया है कि आप अब उसके लिए फ़ंड्स की भी अवेलेबिलिटी कर दी गई है बजट में अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपका काम है कि इन मंसूबों को बड़ी बरकरफ्तारी से इसको आप पाया तकमील तक पहुँचाएँ और वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिलकर इंशाअल्लाह भरपूर तावन करेगी। और जो भी इस मामले में फ़ंड्स के अलावा जो हमने मुख्तस कर दिए हैं, मज़ीद जो भी मुआवनत चाहिए होगी उसके लिए हम हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और इस खूबसूरत सूबे को, KP को और यहाँ के आवाम को और यहाँ करे बसने वाले हमारे भाइयों और बहनों को और हिम्मत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए और सुकून अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब इस प्रेजेंटेशन है जैसे शुरू करें फिर। कितनी स्लाइड्स हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर का दौरा और वो कबायली अमायदीन से ख़िताब कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में तरक्याती कामों की तारीख़ रकम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि तरक्याती काम नवाज़ शरीफ के VN का मज़र है। और उन्होंने मज़ीद कहा गुज़श्ता हुकूमत ने इन मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया था। इसकी सर कॉस्ट जो है वो 4.72 बिलियन है सर। इसमें 3 ब्रिजेज हैं सर। स्पॉन्सरिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ KP सर कर रही है और एग्जीक्यूशन पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी है सर। नेक्स्ट सर, दिस इज द जनरल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड एक्चुअली सर बुनेर और तुर्गुर को ये कनेक्ट कर देगा। बट एक्चुअली सर आई वुड से कि ये हज़ारा और मलाकंड और मरदान डिवीज़न को सर इंटर
इंटर कनेक्ट सर करेगी सर। और इसमें टूरिज़्म भी सर डेवलप होगा, ट्रांसपोर्टेशन की लोग कॉस्ट भी सर होगी सर। विद दी ये ब्रिज और रोड के अलावा सर अभी जो पॉपुलेशन है सर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर सर, ये लोग सर वाय तरबेला गाजी से हो के सर फिर अपने वो 5 इंडियन कौंसल्स में सर पहुँचते हैं। एंड इट इज़ अबाउट 250 किलोमीटर सर। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज एंड रोड सर, this distance will be reduced to 1 kilometer sir. 1 kilometer 1 kilometer so बहुत massive ये benefit है, बहुत massive time जी सर, consumption of fuel and time is money, बहुत अच्छी। yes sir, वायबल प्रोजेक्ट है सर ये मतलब ये रोड भी सर जो और ये दूसरा जो इंडस रिवर पे ब्रिज है सर, ये दोनों प्रोजेक्ट्स के सर ये इनके ये फायदे सर होंगे। नेक्स्ट तो मालाकंड डिवीजन में ये किस एरिया को कनेक्ट करेगी? ये सर डायरेक्ट बुनेर को सर कनेक्ट करेगी, फिर उससे आगे सर ये डिस्ट्रिक्ट स्वात को भी कनेक्ट करेगी और डिस्ट्रिक्ट मर्दान, और इन अदर वर्ड सर ये सवाबी को भी कनेक्ट करेगी तरबेला साइड। तो अमीर मकाम आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए यहाँ पे। जी सर, जी सर। Sir, the red line shows sir the alignment of the proposed road sir. वहाँ पर दिखाएं, हम इस पर किस स्पॉट पे बैठे हैं हम? अभी सर हम जुद्बा में सर बैठे हैं। कहाँ पे? जुद्बा सर। इसमें नहीं है सर। नेक्स्ट स्लाइड बताइए जरा प्लीज। हम सर यहाँ पे बैठे हैं सर। ये हमारी सर जो ब्रिज है इंडस रिवर पे, ये उसकी लोकेशन है सर, और ये रोड सर यहाँ से होके अम्बेला तक सर ये डिस्ट्रिक्ट बुनेर में है सर, और ऑनवर्ड सर ये फिर मर्दान को कनेक्ट करती है, और अम्बेले से आगे फिर ये इधर डिस्ट्रिक्ट स्वात को सर कनेक्ट करेगी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है जी सर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सर वो कड़ाकल टनल है सर। इसकी सर टोटल लेंथ जो है 2.1 किलोमीटर टनल की लेंथ है सर, और 1 किलोमीटर इसके अप्रोचेज हैं सर। इसकी कॉस्ट है 9.58 बिलियन सर, और कंप्लीशन टाइम सर इसका है 3 इयर्स सर। 3 इयर्स? कम करें इसको कम करें, बहुत लंबा पीरियड है ये। जी सर, ठीक है सर। यानी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी सर, दिस हैज टू बी रिड्यूस्ड। इसको आप 50% टाइम कम करें। ठीक सर, इंशाल्लाह ये नोट कर लें। ठीक, आज भाई चीफ सेक्रेटरी नोट कर लें इसको। ठीक सर। सर इसकी जो कैरेज वे है 7.55 मीटर है, 2 लेन है सर, और इसका जो क्लियरेंस है सर वो 5.2। और कितने लेन है ये? 2 लेन। 2 लेन सर, 2 लेन सर। और ये सर फिर आगे डिस्ट्रिक्ट बुनेर और डिस्ट्रिक्ट स्वात को सर कनेक्ट करेगी जो टनल है सर। और इससे सर जो नेक्स्ट स्लाइड पे आप चले जाएं, इसके बेनिफिट्स बताएं। बेनिफिट्स ये सर हमारी प्रोपोज्ड अलाइनमेंट है ऑफ द टनल सर, और ये सर जो एग्जिस्टिंग रोड है सर यहाँ से, ये मतलब 11 किलोमीटर सर ये डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा सर। ये प्रोपोज्ड अलाइनमेंट है जो रेड नज़र आ रहे हैं सर, ये टनल की अलाइनमेंट है सर। वेरी गुड जी सर। ठीक, तो इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में मोर देन 1 आवर की सर जर्नी टाइम कम हो जाएगा, और फासला 11 किलोमीटर सर कम हो जाएगा। ठीक जी सर। और इस वक्त कितना जर्नी टाइम कितना है इस वक्त? जी सर, ये सर अगर आप देखें ये सर एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है सर रोड की। No, but once this project is completed, 50 मिनट ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा तकरीबन सर, तकरीबन सर। गुड, यस सर। नेक्स्ट सर इसमें कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो चुका है सर। अच्छी, कुछ कैंप्स की पिक्चर्स हैं सर। नेक्स्ट सर ये थर्ड प्रोजेक्ट जो है सर RCC ब्रिज ऑफ इंडस रिवर, सर इसकी कॉस्ट है 9.95 बिलियन सर। इसकी कंप्लीशन टाइम भी सर 3 साल की है सर। ये 3 साल आपने क्यों रखे हुए हैं सर? रिसोर्सेज भी सर हैं। KP का यार्ड स्टिक है या ये क्या है ये? सर एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सर फंड्स अवेलेबिलिटी सर। आज फंड पूरी स्पीड से हमें करना चाहिए बिल्कुल। इसमें सर अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट दे दें करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, वी कैन कंप्लीट इट विद इन 2 इयर्स सर। वी कैन बिल्कुल इंशाल्लाह। जी सर,
सर इनको ये आप हुक्म फरमा दें, चीफ सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाता हूँ। ये सी पैक 30 किलोमीटर है यहाँ से, ये जो डिफेंस रोड है झील के साथ, इसको डबल कर दें सर। ये